listening, friends. नमस्कार श्रोता मित्रों, We are glad you've tuned in to listen to this program. हम बहुत आनंदित हैं कि आप इस कार्यक्रम को सुनने के लिए उपस्थित हैं And we hope that God is using this series of messages to bless your life. और हम आशा करते हैं कि परमेश्वर इस संदेश श्रृंखला का प्रयोग आपके जीवन को आशीषित करने के लिए कर रहा है। And if you haven't written to us, we hope that you will write to us and tell us how much these broadcasts mean to you. यदि आपने अभी तक हमें पत्र नहीं लिखा है तो हम आशा करते हैं कि आप लिखकर हमें बताएंगे कि ये प्रसारण आपके लिए कितना अर्थपूर्ण है। I want to begin by telling you something somebody told me years ago. मैं आपको एक बात बताते हुए प्रारंभ करना चाहता हूं जो कई वर्ष पहले किसी ने मुझे बताई। He said, perception is reality. उसने कहा दृष्टिकोण एक वास्तविकता है। It took a long time for me to experience that statement and understand this concept. इस वाक्य का अनुभव करने और इस धारणा को समझने में मुझे लंबा समय लगा। Not only in my own life, but in the lives of other people. न केवल मेरे अपने जीवन में परंतु दूसरे लोगों के जीवन में भी। Perception is reality, is true in the lives of many people today. दृष्टिकोण एक वास्तविकता है, आज बहुत सारे लोगों के जीवन में ये बात सत्य है। One of the most difficult tasks is to correct a wrong perception. सबसे कठिन कार्यों में से एक है गलत दृष्टिकोण को सही करना। It really is one of the hardest things in the world to do. ये सच में संसार के सबसे कठिन कार्यों में से एक है। A person who has a wrong perception is like the person who says, I have made up my mind, don't confuse me with the facts. गलत दृष्टिकोण रखने वाला व्यक्ति ऐसे व्यक्ति के समान है जो कहता है मैं तय कर चुका हूं, तथ्य दे देकर मुझे उलझन में मत डालो। And one of the most persistent wrong perception is the concept of meekness or gentleness. और लगातार चलने वाले गलत दृष्टिकोणों में से एक है विनम्रता या भद्रता की धारणा। Whether it's people who are Christians or people who are not. चाहे ये मसीही लोग हों या गैर मसीही, It is difficult for people to comprehend what it means to be biblically meek and biblically gentle. लोगों के लिए ये समझना कठिन है कि बाइबल अनुसार नम्र और विनम्र होने का क्या अर्थ है। The perception that meekness means weakness stubbornly persists. नम्रता का अर्थ है निर्बलता, ये धारणा कड़ाई से कायम है। The biblical concept of meekness is far from weakness. बाइबल अनुसार नम्रता की धारणा निर्बलता से कहीं परे है। Most people describe timidity, cowardice as meekness, अधिकतर लोग नम्रता की व्याख्या कायरता और भीरुता के रूप में करते हैं, while in reality, biblical meekness is synonymous with courage. जबकि वास्तव में बाइबल अनुसार नम्रता साहस के समानार्थी है। Biblical meekness is synonymous with confidence. बाइबल अनुसार नम्रता आत्मविश्वास के समानार्थी है। Biblical meekness is synonymous with inner security. बाइबल अनुसार नम्रता अंदरूनी सुरक्षा के समानार्थी है। Biblical meekness is synonymous with strength under control. बाइबल अनुसार नम्रता अपने नियंत्रण में अपनी शक्ति के समानार्थी है। In fact, that's exactly what meekness means. बल्कि यही नम्रता का वास्तविक अर्थ है, Strength under control. नियंत्रण में बल। If you are listening to our broadcast for the first time, यदि आप पहली बार हमारा प्रसारण सुन रहे हैं we have been going through a series of messages on the fruit of the Spirit. तो हम आत्मा के फल पर आधारित संदेश श्रृंखला को देख रहे हैं। Meekness is the next to last of the spiritual fruit. नम्रता आत्मिक फल के अंतिम फल से पहला है। Self-control is the last of the 9. संयम 9 में से अंतिम फल है। The Greek word paraitos has real deep roots before the time of Christ. यूनानी शब्द प्रवाटास मसीह के समय से पहले से ही बहुत प्रचलित है। This word was readily understood by the Greeks and could not be further from meaning weakness. यूनानी इस शब्द को इसी रूप में समझते थे और निर्बलता से अधिक इसका कोई और अर्थ नहीं निकाल सके। As a matter of fact, Aristotle had a theory that virtue is the median between two vices. तथ्य के रूप में अरस्तु का मानना था कि गुण दो अवगुणों के बीच का एक भाग होता है। Rage was a vice of one extreme, he said. उग्रता एक चरम का एक अवगुण है, उसने कहा। And indifference was a vice on the other extreme. और उदासीनता दूसरे चरम का एक अवगुण है।
And Aristotle placed praetos or meekness in between these two extremes. और अरस्तु ने प्राउटस और नम्रता को इन दो चरम सीमाओं के बीच में रखा। There are two things that I need to tell you about meekness. नम्रता के बारे में दो बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। Number one, नंबर एक, meekness is not weakness. नम्रता निर्बलता नहीं है। Second, दूसरी, meekness is not false modesty. नम्रता झूठी विनम्रता नहीं है। What do I mean by meekness is not weakness? नम्रता निर्बलता नहीं है, इससे मेरा क्या अर्थ है? In fact, this explains why Moses is called the meekest man on the earth. बल्कि इससे हमें पता चलता है कि क्यों मूसा को धरती पर सबसे नम्र व्यक्ति कहा गया। This was found in the book of Numbers, chapter 12, verse 3. ये हमें गिनती की पुस्तक 12 अध्याय के 3 पद में मिलता है। Let's read it. आइए इसे पढ़ते हैं। मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। It is possible that you could have a hard time understanding this passage. संभव है कि इस भाग को समझने में आपको काफी कठिनाई का सामना करना पड़े। If you know anything about Moses, you might say, now wait a minute. यदि आप मूसा के विषय में कुछ भी जानते हैं तो शायद आप कहें, रुकिए जरा। Moses was a strong and decisive leader. मूसा एक सामर्थी और निर्णयकारी अगुवा था। Moses was prone to lose his temper. मूसा को गुस्सा आना संभव था। He even killed a man. उसने तो एक आदमी की हत्या भी की थी। Moses, the meekest man on the face of the earth, you gotta be kidding. मूसा धरती पर सबसे नम्र व्यक्ति, आप जरूर मजाक कर रहे हैं। He was once told by God to speak to the rock, but he hit it instead. Moses, the meekest man on the face of the earth, you've got to be kidding. परमेश्वर ने एक बार उसे चट्टान से जाकर बात करने के लिए कहा, परंतु उसके बजाय उसने चट्टान को लाठी से मारा। मूसा धरती पर सबसे नम्र व्यक्ति, आप जरूर मजाक कर रहे हैं। He was once told by God to speak to the rock, but he struck it instead. परमेश्वर ने एक बार उससे चट्टान से बात करने के लिए कहा, परंतु इसके बजाय उसने जाकर लाठी से चट्टान को मारा। And thus he was disqualified from entering into the promised land. और इस कारण वो प्रतिज्ञा की हुई धरती में प्रवेश करने से अयोग्य ठहराया गया। Let's read the book of Numbers, chapter 20, verses 10 to 12. आइए पढ़ें गिनती की पुस्तक 20 अध्याय उसके 10 से 12 पदों को। मूसा और हारून ने मंडली को उस चट्टान के सामने इकट्ठा किया। तब मूसा ने उनसे कहा, हे दंगा करने वालों, सुनो, क्या हमको इस चट्टान में से तुम्हारे लिए जल निकालना होगा? तब मूसा ने हाथ उठाकर लाठी चट्टान पर 2 बार मारी और उसमें से बहुत पानी फूट निकला और मंडली के लोग अपने पशुओं समेत पीने लगे। परंतु मूसा और हारून से यहोवा ने कहा, तुमने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया और मुझे इस्राएलियों की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया, इसलिए तुम इस मंडली को उस देश में पहुंचाने ना पाओगे जिसे मैंने उन्हें दिया है। How can this man Moses be the meekest man on the earth? कैसे ये व्यक्ति मूसा धरती पर सबसे नम्र व्यक्ति हो सकता है? Because the Bible calls him that. क्योंकि बाइबल उसे यही पुकारती है। And because the biblical definition of meekness is not the same as the common definition of meekness. और क्योंकि नम्रता की बाइबल अनुसार परिभाषा वैसी नहीं है जैसी नम्रता की आम परिभाषा है। Because in the Bible, meekness does not mean a timid, indecisive person who's afraid of his own shadow. क्योंकि बाइबल में नम्रता का अर्थ एक ऐसा कायर और अनिर्णयकारी व्यक्ति नहीं है जो अपनी ही परछाई से डरता हो। Gentleness or meekness has to do with the way you express the truth, not denying it. दीनता या नम्रता का संबंध सत्य का इनकार करने से नहीं है, बल्कि इससे है कि आप सत्य को प्रकट किस तरह से करते हैं। Gentleness or meekness has to do with the way you stand firm, not caving in. दीनता या नम्रता का संबंध आपके दुबक कर बैठ जाने से नहीं है, बल्कि इससे है कि आप दृढ़ता से कैसे खड़े रहते हैं। Gentleness or meekness has more to do with the way you express courage and not having it. दीनता या नम्रता का अधिक संबंध आपके साहस रखने से नहीं है, परंतु इससे है कि आप इस साहस को प्रकट कैसे करते हैं। Gentleness or meekness is about the vehicle that carries your conviction publicly. It is not the absence of courage. दीनता या नम्रता एक ऐसे वाहन के समान है जो आपके दृढ़ विश्वास को सार्वजनिक रूप से उठाए हुए चलता है। यह साहस की अनुपस्थिति नहीं है। Gentleness or meekness is more related to how you answer your critics and antagonists
and not the fact that you should not have any critics or antagonists. दीनता और नम्रता ज्यादा इस बात से जुड़ी हुई है कि आप अपने आलोचकों और विरोधियों को कैसे उत्तर देते हैं, ना कि इस तथ्य के साथ कि आपका कोई आलोचक या विरोधी नहीं होना चाहिए। Let's look at Moses again. आइए फिर से मूसा के विषय में देखते हैं। In this example, look at the way he expressed his conviction. इस उदाहरण में गौर कीजिए किस तरह से उसने अपने निश्चय को प्रकट किया। Look at the way he expressed strength under control. देखिए किस तरह से उसने शक्ति वश में होने का प्रदर्शन किया। Look at the way he expressed meekness from a biblical perspective. देखिए किस तरह से उसने बाइबल अनुसार दृष्टिकोण से नम्रता का प्रदर्शन किया। His brother Aaron and his sister Miriam got jealous of his leadership. उसका भाई हारून और उसकी बहन मिरियम उसके नेतृत्व से जलने लगे। They did not like his style of leadership. उन्हें उसके नेतृत्व का तरीका पसंद नहीं था। They did not like his popularity. उन्हें उसकी लोकप्रियता अच्छी नहीं लगती थी। They did not like the way he was exercising authority. उन्हें वो तरीका अच्छा नहीं लगता था जैसे वो अपने अधिकार का प्रयोग करता था। So they did what most people often do. तो उन्होंने वही किया जो अक्सर अधिकतर लोग करते हैं। They were not honest and they did not admit that they were jealous of his success. वो ईमानदार नहीं थे और उन्होंने इस बात को नहीं माना कि वो उसकी सफलता से जलते थे। They did not go up to him and say, "We don't like the way you are leading." उन्होंने उसके पास जाकर नहीं कहा, हमें तुम्हारा अगुवाई करने का तरीका अच्छा नहीं लगता, "We don't like your leadership style." हमें तुम्हारा नेतृत्व करने का तरीका अच्छा नहीं लगता, Or, "We are having a hard time with that. या हमें इससे मुश्किल हो रही है And we are jealous of you." और हमें तुमसे ईर्ष्या है। That would have been a good way to deal with things. मसलों से निपटने का यह अच्छा तरीका होता, Because they have sat down and talked about it and prayed about it and dealt with it. क्योंकि वो बैठते, इस बारे में बात करते, प्रार्थना करते और इसे सुलझाते। But Aaron and Miriam did what most people do. परंतु हारून और मिरियम ने वही किया जो अधिकतर लोग करते हैं। They came up with misguided criticism to level at Moses. उन्होंने मूसा की बराबरी करने के उद्देश्य से गलत आलोचना का सहारा लिया। They chose criticism that would have some popularity and would get other people on their side. उन्होंने आलोचना का सहारा लिया जो कि शायद लोकप्रिय बात थी और इससे बाकी लोग उनकी तरफ हो जाते। What was it? ये क्या था? They said that the fact that Moses married a woman with darker skin than his was not good. उन्होंने कहा कि मूसा ने अपने से काली औरत के साथ विवाह किया है, ये अच्छी बात नहीं है। In the book of Numbers, chapter 12, verse 1, we read as follows. गिनती की पुस्तक 12 अध्याय के 1 पद में हम ये पढ़ते हैं, मूसा ने एक कूशी स्त्री के साथ विवाह कर लिया था, इसलिए मरियम और हारून उसकी उस विवाहित कूशी स्त्री के कारण उसकी निंदा करने लगे। And from that moment on, the gossip mill went as fast among the Israelite community as a weaver's shuttle. और उसी क्षण से गप फैक्ट्री इसराइलियों में इतनी तेजी से चली जैसे जुलाहे की फिरकी। I mean as fast as your radio dial can switch between stations. मेरा मतलब है कि इतनी तेज जैसे आपके रेडियो पर रेडियो स्टेशन बदलते हैं। And some people began to support Aaron and Miriam and things began to get out of control. और कुछ लोगों ने हारून और मरियम का साथ देना शुरू कर दिया और मसला बिगड़ने लगा। What did Moses do? मूसा ने क्या किया? This is very important. ये बहुत महत्वपूर्ण है। How did he express this meekness? उसने ये नम्रता कैसे प्रदर्शित की? Well, he could have said, "Well, Aaron, Miriam, you either be quiet or leave." वो कह सकता था, हारून, मरियम, तुम या तो चुप रहो या यहां से चले जाओ। Right? ठीक है, He could have done that and it was within his right to do that. वो ऐसा कर सकता था और ऐसा करना उसके अधिकार में था। He could have said, "You fools, don't you know how important I am?" वो कह सकता था, मूर्खो, तुम्हें नहीं पता कि मैं कितना महत्वपूर्ण आदमी हूं। "Oh, you bunch of complainers, if it wasn't for me, you would still be in slavery in Pharaoh's land." या तुम शिकायतें करने वाले झुंड, यदि मैं ऐसा नहीं करता तो तुम अभी भी फिरौन के देश में गुलामी कर रहे होते। He could have said, "You have done nothing but eat off me the whole time." वो कह सकता था, तुमने हर समय मुझे खपाने के सिवाय और कुछ नहीं किया है। You are nothing but a bunch of parasites who have done nothing but grumble and complain all the time. तुम और कुछ नहीं बल्कि परिजीवियों का एक झुंड हो जिन्होंने हर समय शिकायतें करने और कुड़कुड़ाने के अलावा और कुछ नहीं किया है। But you see, biblical meekness is strength under control. परंतु आप देखें कि बाइबल अनुसार नम्रता है शक्ति अपने नियंत्रण में।
If he has said all these things I just mentioned, that would have been weakness. यदि उसने वो सब बातें कही होती जो अभी मैंने बताई तो ये उसकी निर्बलता होती। But this strong, courageous, and secure man, Moses, exercised meekness. परंतु इस सुरक्षित, साहसी और सामर्थी व्यक्ति मूसा ने नम्रता का प्रयोग किया। Listen carefully to what I'm going to tell you. कृपया ध्यान से सुने जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। The man who walks into the house and yells at his family and reminds everybody that he is the man of the house is not a very strong man. वो व्यक्ति जो घर में घुसते ही अपने परिवार पर चिल्लाते हुए हर किसी को ये याद दिलाने का प्रयत्न करता है कि वो घर का प्रधान है, वो सामर्थी व्यक्ति नहीं है। He is a weak man. वो एक कमजोर व्यक्ति है। The person who is constantly announcing that they are the boss, that is a weak and insecure man. ऐसा व्यक्ति जो निरंतर घोषणा करता रहता है कि वही बॉस है, वो एक कमजोर और असुरक्षित व्यक्ति है। And therefore not meek but weak. इसलिए वो नम्र नहीं, निर्बल है। If you have to remind everybody how important you are not meek, you are weak. यदि आपको हर किसी को ये स्मरण दिलाना पड़ता है कि आप कितने महत्वपूर्ण हैं, तो आप नम्र नहीं हैं, आप निर्बल हैं। Someone said, किसी ने कहा है, it is too bad that the meek have not inherited the earth yet because the unmeek are making a real mess of it. ये बहुत ही बुरा है कि नम्र लोग अभी धरती के वारिस नहीं बने हैं, क्योंकि नम्रता विहीन लोग इसको उजाड़ रहे हैं। How did Moses react to the criticism and gossip? आलोचना और गप का प्रत्युत्तर मूसा ने कैसे दिया? He ignored them. उसने उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। He said nothing. उसने कुछ भी नहीं कहा। In fact, it was God who did not like what was happening. बल्कि परमेश्वर को ये सब अच्छा नहीं लगा। And had God not acted, we would probably never have heard this story. और यदि परमेश्वर कुछ ना करता तो शायद हम कभी भी ये कहानी नहीं सुन पाते। God was angry and he acted upon his anger. परमेश्वर क्रोधित हो गया और उसने अपने क्रोध में ये कार्य किया। Next time we will find out how God reacted to the pettiness of the people against his chosen prophet Moses. अगली बार हम जानेंगे कि अपने चुने हुए नबी मूसा के विरुद्ध लोगों की क्रूरता का परमेश्वर ने कैसे प्रत्युत्तर दिया। I hope you promise yourself to tune in on the regular time, मुझे आशा है कि आप अपने आप से निर्धारित समय पर कार्यक्रम सुनने का वादा करेंगे, so you can listen to the rest of the story. ताकि आप कहानी का बाकी हिस्सा सुन सकें। Until then, I wish you God's richest blessing. तब तक मैं आपके लिए परमेश्वर की उत्तम आशीष की कामना करता हूँ।